इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस वीडियो नंबर 5 और एग्जाम्पल्स ऑन इक्विवेलेंस रिलेशंस वीडियो नंबर 2। एग्जाम्पल्स के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल नंबर 4, इन अ सेट कामा कैपिटल एस कामा ऑफ रियल नंबर्स let us consider three relations. Equality, comma, less than or equal to, comma, less than. इन्हीं तीनों का नेचर हम चेक करने जा रहे हैं। पहला, A is R related to B implies that and implied by A is equal to B for all A comma B belonging to S। ये वाला रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा। It is reflexive, symmetric, and transitive because A is equal to A for all A belonging to S implies that A is R related to A for all A belonging to S। रिफ्लेक्सिविटी के लिए लॉजिक हो गया। A or B implies that A is equal to B implies that B is equal to A implies that B or A semicolon A comma B belonging to S। सिमेट्री के लिए हो गया लॉजिक। A or B, B or C implies that A equals to B, B equals to C implies that A equals to C implies that A or C semicolon A comma B comma C belonging to S full stop। समझ में आ रहा है ना? A आर बी कामा बी आर ए, दोनों घटनाएं घटने से आओ देखें क्या हमें मिलता है। A इक्वल्स टू बी कामा बी इक्वल्स टू ए implies that A equals to B semicolon A comma B belonging to S। Therefore R is antisymmetric also। R is antisymmetric also। है ना बढ़िया रिलेशन। नंबर 2, लेस देन और इक्वल टू वाले को ये चेक करें। ये रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। A or B implies that and implied by A is less than or equal to B for all A comma B belonging to S। ये रिलेशन है ये वाला। It is reflexive, transitive, but not symmetric, but not symmetric because A is less than or equal to A for all A belonging to S। ऐसा होगा ही। It is too obvious, obviously implies that A is R related to A for all A belonging to S। ये स्टेटमेंट ट्रू है भैया। A is less than or equal to A।
A or B implies that B or A, sorry, A less than or equal to B. तो ये B लेस देन और इक्वल टू A को इंप्लाई नहीं करता है, which does not necessarily, which doesn't necessarily imply that, implies लिख दें, which एक वचन है, implies that B less than or equal to A, that is B or A semicolon A comma B belonging to S. इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है. A or B, B or C implies that A less than or equal to B, B less than or equal to C implies that A less than or equal to C implies that A or C semicolon A comma B comma C belonging to S. Here. रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. फुटनोट लगाइए. A और B कामा B और A दोनों घटनाएं घटा करके देखिए, ये दोनों हैपन करेंगी तो क्या आपको मिलेगा. A लेस देन और इक्वल टू B और B लेस देन और इक्वल टू A, ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक ही टाइम पे सही हैं तो इसका मतलब होता है A इज इक्वल टू B. Therefore, R is antisymmetric. क्लियर हो रहा है कुछ? देखो, ऐसा होने से ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हो कब सकता है? जब इक्वलिटी यहां पे लेंगे, लेकिन जब इनइक्वलिटी रहेगा लेस देन तब नहीं होगा. तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर इसका मतलब हम कह नहीं सकते ना कि होगा ही होगा. A और B इंप्लाई करेगा ही करेगा B और A को. नेक्स्ट तीसरा वाला ये लेस देन, ओनली लेस देन. थर्ड, only less than. A or B implies that and implied by A is less than B for all A comma B belonging to S. ये रिलेशन है तीसरा वाला. तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है. It is transitive only. It is transitive only. Because A is less than A for all A belonging to S. It is not true. It is false statement. A is less than A for all A belonging to S. False. Not possible. A is less than B does not imply B is less than A. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है. A or B, B or C implies that A is less than B, B is less than C implies that A is less than C implies that A or C, A, B, C तीनों एलिमेंट्स हैं S के. ये रहा. इस एग्जाम्पल में हमने आपको इक्वलिटी वाला रिलेशन बताया, लेस देन और इक्वल टू वाला रिलेशन बताया और लेस देन वाला रिलेशन बताया. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 5. In the set
comma capital S comma of all straight lines in a plane let us consider two relations. Let us consider two relations, एक पैरेलल होने वाला और एक परपेंडिकुलर होने वाला. तो आइए इनको हम चेक करें. नंबर 1, रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म. L1 or L2 implies that n implied by L1 is parallel to L2 for all L1 comma L2 belonging to S. L1 L2 स्ट्रेट लाइन्स हैं. एक समतल में खींची जा सकने वाली सभी स्ट्रेट लाइन्स का सेट है, समुच्चय है S, और ये रिलेशन है. तो एक जैसे नंबर्स वाले में इक्वलिटी था वैसे ही लाइन्स वाले में पैरेललिज्म है. रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म. It is reflexive, symmetric, transitive. Because L1 is parallel to L1 for all L1 belonging to S. हर स्ट्रेट लाइन खुद के पैरेलल मानी जा सकती है, होती ही है. implies that L1 is R related to L1 for all L1 belonging to S. Next, L1 or L2 implies that L1 is parallel to L2 implies that L2 is parallel to L1 implies that L2 or L1 comma L2 belonging to S. तो ये सिमेट्री के लिए तर्क हो गया. L1 और L2 ने इम्प्लाई कर दिया L2 और L1 को. ट्रांजिटिविटी के लिए देखा L1 और L2 और L3 implies that L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3 implies that L1 is parallel to L3 implies that L1 is R related to L3 where L1 comma L2 comma L3 belong to S. Here. Number 2, relation of perpendicularity. L1 or L2 implies that n implied by L1 is perpendicular to L2 for all L1 L2 belonging to S. इसे चेक करना है. ये सिर्फ सिमेट्रिक है. It is symmetric only. Because L1 is perpendicular to L1 for all L1 belonging to R. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है. हो ही नहीं सकता. कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट, L1 or L2 implies that L1 is perpendicular to L2 implies that L2 is perpendicular to L1 implies that L2 or L1 comma L2 belong to S. Yeah. L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3 implies that L1 is perpendicular to L3. ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है.
क्योंकि देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 L3 पैरेलल हो गए। तो रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म बिटवीन स्ट्रेट लाइंस is an equivalence relation. Relation of perpendicularity between straight lines is symmetric only. अगला उठाते हैं, एग्जाम्पल 6। इन द सेट कामा एस से डिनोट कर दिया, कामा किसको, ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, all triangles in a plane. Let us consider two relations. Let us consider two relations, congruence or similarity. Congruence and similarity. नंबर 1, triangle delta 1 is R related to triangle delta 2 implies that and implied by triangle delta 1 is congruent to triangle delta 2 for all triangles delta 1 delta 2 belonging to S. ये रिलेशन it is an equivalence relation, माने रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। Triangle delta 1 is congruent to triangle delta 1 for all triangle delta 1 belonging to S. ये ऑब्वियस रिजल्ट है, स्पष्ट है, हर ट्रायंगल खुद के सर्वांगसम होता है। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा 1 is R related to delta 1 for all delta 1 belonging to S. Next, delta 1 R delta 2 implies that delta 1 is congruent to delta 2, implies that delta 2 is congruent to delta 1, implies that delta 2 is R related to delta 1, semicolon, delta 1 और delta 2 एलिमेंट्स हैं S के। नेक्स्ट, delta 1 R delta 2, delta 2 R delta 3 implies that delta 1 is congruent to delta 2, delta 2 is congruent to delta 3, implies that delta 1 is congruent to delta 3, implies that delta 1 is R related to delta 3, semicolon, delta 1 comma delta 2 comma delta 3 belong to S. तो हमने लॉजिकल एविडेंस प्रस्तुत कर दिया। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन ट्रायंगल्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे ही रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। त्रिभुजों का समरूप होना, ये सर्वांगसम होना, कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांगसम। नंबर 2, delta 1 is R related to delta 2 implies that and implied by delta 1 is similar to delta 2 for all delta 1 delta 2 belonging to S.
इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला तर्क, डेल्टा वन खुद के समरूप होता है, सिमिलर होता है। डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा वन फॉर ऑल डेल्टा वन बिलोंगिंग टू एस, ऑब्वियस, implies that delta 1 is R related to delta 1 for all delta 1 belonging to S। रिफ्लेक्सिविटी की बात हो गई। delta 1 R delta 2 implies that delta 1 is similar to delta 2, जाहिर सी बात है, implies that delta 2 is similar to delta 1, यानी कि delta 2 is R related to delta 1 where डेल्टा 1 और डेल्टा 2 एस के एलिमेंट्स हैं। ये सिमेट्री हो गई। डेल्टा 1 आर डेल्टा 2, डेल्टा 2 आर डेल्टा 3 implies that delta 1 similar to delta 2, delta 2 similar to delta 3 implies that delta 1 is similar to delta 3, implies that delta 1 is R related to delta 3 where delta 1, delta 2, delta 3 belong to S। ये लिखने का सबूत है। आइए एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। हाँ, नाना प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रख दे रहे हैं। अब मैं समझ रहा हूँ अगले वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में जानकारी दूंगा, तो उस बतकही में भी इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन से ही बनता है, पैदा होता है। तो वहाँ भी एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल 6, हो गया ना। एग्जाम्पल 7, इन द सेट एस ऑफ ऑल सेट्स, जितने भी सेट्स हो सकते हैं उन सभी सेट्स का सेट बना लो, सेट ऑफ ऑल सेट्स। लेट अस कंसीडर 3 रिलेशंस। Let us consider three relations inclusion, सबसेट होना, प्रॉपर इंक्लूजन, ये प्रॉपर सबसेट होना, एंड इक्विपोटेंस, relation of equipotence, 2 sets are equipotent। टू फाइनाइट सेट्स की बात हम लेके चलेंगे यहाँ पे ना। दो फाइनाइट, कोई भी फाइनाइट सेट, कोई भी दो फाइनाइट सेट्स इक्विपोटेंट सेट्स या इक्विवेलेंट सेट्स कहलाती हैं यदि उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में समान हो। 1 by 1 चलो तीनों को डिस्कस कर लें। सेट को हम ए बी सी या A1 B1 C1 ऐसे करके डिनोट कर दे रहे हैं। कैपिटल A इज R रिलेटेड टू कैपिटल B implies that and implied by A is subset of B for all A comma B belonging to S। नंबर्स वाले एग्जाम्पल में जो लेस देन और इक्वल टू की भूमिका थी वही इसमें भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा।
it is reflexive, transitive, but not symmetric. But not symmetric. A is subset of A for all A belonging to S. ये बात ऑब्वियस है, स्पष्ट है, हर सेट खुद का सबसेट होता है. implies that A is R related to A for all A belonging to S. रिफ्लेक्सिविटी की बात हो गई. A is R related to B implies that A is subset of B, which ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसी को, implies that B is subset of A. false या not true या not always possible. false लिख दिए, false. A सबसेट B implies that B सबसेट A. ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होगा. यहीं पर स्टार बना के हम लिख दें A R B कामा B R A implies that A सबसेट B कामा B सबसेट A and these imply that A equals to B. Semicolon. A comma B belonging to S. Therefore, R is antisymmetric. R is antisymmetric. Okay. Third, A or B, B or C implies that A is subset of B, B is subset of C. This implies that A is subset of C. Implies that A or C, semicolon, where A, B, C belong to S. ट्रांजिटिविटी हो गई. अब प्रॉपर इंक्लूजन देखें. नंबर 2, A or B implies that and implied by A is proper subset of B for all A, B belonging to S. It is transitive only. It is transitive only. A is proper subset of A for all A belonging to S. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. A is R related to B implies that, संक्षेप में लिखा जाए, A is proper subset of B implies that B is proper subset of A. फॉल्स, ये भी संभव नहीं है. ये संभव है, ये वाला, क्योंकि इसमें इक्वलिटी भी है. तो इसका मतलब है A इज इक्वल टू B या A इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन B. यहां पे स्टार बना के एक चीज और हम लिख सकते हैं. A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A implies that A इज इक्वल टू B. ये भी फॉल्स है भाई, ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं. ये संभव है, ऐसा होने पर ऐसा होगा, वो संभव नहीं है. तो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है. देयरफॉर R इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. नेक्स्ट, A सबसेट B, B सबसेट C implies that A subset C where A comma B comma C belong to S. तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है. रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव है. अब आइए इक्विपोटेंस की बात कर लें.
नंबर 3, A or B implies that and implied by number of elements in A is equal to number of elements in B for all A comma B belonging to S semicolon. ये फाइनाइट सेट्स की बातचीत हम कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलो ठीक है। अब ये ना देखो, ऑल सेट्स है तो इसमें चल गया, इसमें चल गया, इसमें नहीं ऑल सेट चल रहा है, इसमें ऑल फाइनाइट सेट्स, ऑल फाइनाइट सेट्स। तो अब समझ लीजिए ऐसे बता दे रहे हैं, क्या उसको तोड़े ताड़े हैं, या ऐसा करते हैं इसको हम हटा देते हैं, ये लो बस, तो ये हो गया हमारा, है ना। 3 रिलेशंस लिखा है, इसको 2 रिलेशंस कर दो, 2 रिलेशंस, इंक्लूजन प्रॉपर इंक्लूजन, बस। अब एग्जाम्पल 7, इसको 7A कर लो, ये लो सब सुधरवा दिए। तो यहां चेंज हुआ है, यहां शब्द चेंज हुआ है, और इसके आगे यहां चेंज हुआ है। एग्जाम्पल 7B, in the set S of all finite sets let us consider the relation of equipotence कौन सा रिलेशन है? A is R related to B implies that and implied by n of A is equal to n of B for all A comma B belonging to S। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। दो फाइनाइट सेट्स A और B के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो उनको कहते हैं कि वो इक्विपोटेंट है। थोड़ा और मॉडिफाइड डेफिनेशन इसका ये होता है ना, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन A एंड B, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन A एंड B। इसे देखें, थोड़ा दूसरे स्टाइल में लिख दे रहे हैं। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू S implies that A is R related to A for all A belonging to S, therefore R is reflexive, R is reflexive। आप ऐसे भी कर सकते हो, it is quite possible to exist a bijection between A and A which will be identity bijection। Next, A or B implies that number of elements in A is equal to number of elements in B implies that number of elements in B is equal to number of elements in A implies that B are A। सेमीकोलन A और B के बारे में सूचना लिखिए, where A and B are elements of S, therefore R is symmetric। अगर A से B बाइजेक्शन डिफाइंड हो गया है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल टू एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम B टू A। अगर बाइजेक्शन मैपिंग की भाषा बोले हैं इक्विपोटेंस के लिए तो वो भी ठीक है। A और B, B और C implies that number of elements in A is equal to number of elements in B, number of elements in B is equal to number of elements in A implies that number of elements in A is equal to number of elements in C। ओए क्या लिख दिया C।
implies that A or C semicolon where A, B, C are elements of S. Therefore R is transitive also. R is transitive. अगर A से B बाइजेक्शन डिफाइंड हो सकता है, B से C भी हो रहा है, तो A to C भी होगा कंपोजिट, उन दोनों का कंपोजिट। तो आप चाहें तो इसको मैपिंग की जुबान में भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं मूड बना रहा हूँ कि अगले वीडियो से मैं शुरू कर दूँगा इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही डिफाइंड होते हैं। यानी आप इक्विवेलेंस क्लास की स्टडी जब करना शुरू करोगे तब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशंस मिलेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस के एग्जाम्पल उसी में और हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपके कन्फ्यूजन्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे होंगे। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।